So now question number 11. The given in this given question, these two determinants are equal. So we can expand this determinant. This can be written as 2x को x से multiply करेंगे, then you will get here 2x square, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन देंगे 40, और इस डिटर्मिनेंट को हम लोग लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इंटू 3 दैट इज 18, एंड बीच में प्लस का साइन है तो प्लस माइनस साइन देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 14. सो यू विल गेट हियर 2x स्क्वायर इक्वल टू, ये 40 को इधर ले आते हैं, 40 प्लस 18 प्लस 14, so that is 72. So now x square equal to 72 by 2, so this gives 36. So x equal to plus minus 6. So this is the answer. So option number C is correct here, plus minus 6. And now question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ये भी बहुत आसान है, इसको हम लोग cos 15 को cos 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, sin 15 को sin 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट cos 15 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री, दैट इज cos स्क्वायर 15 डिग्री एंड माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 15 डिग्री, sin स्क्वायर 15 डिग्री. So you know that cos square a minus sin square a equal to cos 2a. So this becomes cos 2 into 15 degree. So cos 30 degree, और cos 30 degree का वैल्यू क्या होता है √3/2. So option C is correct here. Now question number 13. The question is if A is a square matrix of order 3 by 3 such that determinant of A equal to 2, then find the value of determinant of 3A. So you know that determinant of K is a constant here, so this can be written K to the power n, and determinant of A. What is A? N is the order of the matrix, so here n equal to 3, so determinant of 3A can be written as n equal to 3, as order is 3 here, so 3 to the power n, n means 3, and determinant of A. So this becomes 3 to the power 3 is 27, and determinant of A is given as 8. So 27 into 8, you will get 216. So option D is correct here. Now question number 14. If A and B are square matrices of order 3 by 3 such that determinant of A equal to 5 and determinant of B equal to 3, then it is required to find the value of determinant of 3 into AB. So determinant of 3 into AB can be written as, अभी हम लोग जस्ट पढ़े इसके पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि डिटर्मिनेंट ऑफ k, and if the order of matrix is n by n, then k to the power n into determinant of A. So this can be written as 3 to the power n, order of determinant is here 3, so 3 to the power 3, and this can be written as determinant of AB, and 3 to the power 3 means 27, and determinant of AB can be written as determinant of A into determinant of B. So 27, determinant of A is 5 given here, and determinant of B is given as 3. So after multiplication you will get here 405. So this is your answer, and option C is correct. Now question number 15. So here it is given as
let the determinant of a 3 by 3 matrix, order of matrix A is given as 3 by 3 be 6. Let the determinant of order 3, मैट्रिक्स A दिया हुआ है कितना 6, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 by 3 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 6, isn't it? And B be a matrix of given B equal to 5A square, then you have to find the value of determinant of B. So it is given here B equal to 5A square, और हम लोग इसको डिटर्मिनेंट दोनों साइड ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 5A square, डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5A square. सो डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका ऑर्डर का वो पावर हो जाएगा, तो 5 टू द पावर हो जाएगा आपको, ऑर्डर 3 है तो 5 टू पावर 3 एंड determinant of A square, and now this can be written as determinant of B equal to 5 to the power 3 means 125, and a determinant of A square can be written as determinant of A square, isn't it? So तो आपका determinant of A, ये here given as determinant of A means इसका जो दिया हुआ है determinant of A का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 6. So B equal to 125 into 6 का square, because determinant of A is given as 6. So after multiplication we will get here determinant of B equal to 4500. So option D is correct here. Now question number 16. In this question, A is the given matrix and also it is given here determinant of A square equal to 25. Then it is required to find the value of alpha. So given that determinant of A square equal to 25, so it means determinant of A equal to 5 and determinant of this matrix is written as 5 alpha, alpha 0 alpha 5 alpha 0 0 5, this equal to 5. So now we expand this determinant by first column. फर्स्ट कॉलम से इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ये 5 हो जाएगा एंड यहाँ से इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, इसके सामने वाले ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई अल्फा इंटू 5, दैट इज 5 अल्फा माइनस ये 0 इंटू 5 वाला तो 0 हो जाएगा, 5 अल्फा माइनस 0, 5 अल्फा माइनस 0, और बाकी ये टर्म्स जितने सब 0 होंगे, फिर माइनस 0 और फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस 0 हो जाएगा. सो दिस इक्वल टू 5. सो नाउ this can be written as 5 into 5 minus alpha. 5 minus alpha is 5 alpha, so 5 into 5 alpha and equal to 5. So 25 alpha equal to 5. So you will get here 5 upon 25 and this is equal to 1 by 5. So option C is correct. Now question number 17. The maximum value of this determinant. What is the maximum value of this determinant? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे. तो डेल्टा इक्वल टू यहाँ से करते हैं 1 से फर्स्ट रो से करेंगे
तो फर्स्ट कॉलम यहाँ से कैंसिल होगा, तो 1 इंटू वी राइट हियर, ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 दैट इज 1 प्लस साइन अल्फा, साइन थीटा है, सॉरी साइन थीटा, एंड 1 इंटू 1 दैट इज -1। फिर यहाँ से इसको फर्स्ट कॉलम का ये सेकंड एलिमेंट ले, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे, देन वी राइट हियर -1, तो ये आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इसको डिलीट करेंगे, देन विल गेट हियर 1 इंटू 1, और ये 1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस से हो जाएगा, तो -1 माइनस कॉस थीटा। फिर ये फर्स्ट रो का ये थर्ड एलिमेंट है, थर्ड कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज ये 1 लेंगे +1, तो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, सो विल गेट हियर 1 इंटू 1 दैट इज 1, एंड माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी 1 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट हियर साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ से इसके अंदर में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, एंड प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, यहाँ से ब्रेक करेंगे अब इसको, -1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या कैंसिल होता है, ये +1 -1 कैंसिल होगा, माइनस साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल गेट हियर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है ये माइनस साइन 2 थीटा बाई 2। अब आप देखिए यहाँ पर क्या पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड यू नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा का 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा क्या, -1/2, साइन 2 थीटा का जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1, तो दिस बिकम्स -1/2, और जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। इन दोनों में मैक्सिमम ये हाफ है, इसी को हम लोग रखेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो आज के वीडियो में ये यहीं तक है, और अगला वीडियो हमारा पार्ट 3 मिलेगा, जिसमें और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का और MCQs मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर watching.